Hello students. In the accountancy first chapter of partnership, short sums that are over. Now we move on the full sums. Full sums are not so important for the board exam, and they will not ask in the board also. But full sums are important for the final account. That is chapter number 2. Okay. Now in the 11th standard we have studied final account. In the final account we were preparing 3 accounts, that is trading account, profit and loss account, and in balance sheet. Now this is sole proprietor's account. In the 11th standard we have studied sole proprietor's final account. So we were preparing trading account, profit and loss account, and balance sheet. But now in the 12th standard we are going to learn final account of partnership firm. So some more accounts are added in between these two, profit and loss account and balance sheet. Now which are they, that I'll show you. The two accounts are profit and loss appropriation account and partners capital or current account. So here two more accounts are added in the partnership final account. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों तो कंपलसरी बनाने ही है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. The rules, regulation, format all remain same as standard 11's final account. Here two more accounts are added. तो इन दोनों का specimen adjustment related to these two बस यही ऐड होगा, बाकी as it is ही as it is जो आपने 11th में पढ़ा था वही सेम रहेगा, राइट. कि कैसे ट्रायल बैलेंस को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते थे उनकी टू इफेक्ट्स किस तरह से देनी है वही सेम 11th में था, वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ in textbook on page number 8 point number 9, profit and loss appropriation account. Now what is profit and loss appropriation account? Now when partners prepare their final accounts, they distribute profit or loss in between them. So that distribution of profit and loss they show in profit and loss appropriation account. See this is the format or specimen of profit and loss account. So profit and loss account is mainly for the partners only. No other things are recorded in profit and loss appropriation account. Only and only partners related transaction ही इसमें record किए जाएंगे. Now see, from the specimen only you can understand. First of all, profit and loss starts with net loss or net profit. Net profit होतो credit side, net loss होतो debit side. Then after, interest on partners capital, right? There are 3 partners, तो तीनों का लेके total outer side. Interest on credit balance of current account of partners. If current account is given in the sum, उसका interest भी दिया होगा तो वो calculate करके इधर लिखेंगे. Then partners salary. When partners are working for the firm, sometimes they take salary also. तो उनको जो सैलरी दी जाएगी वो लिखेंगे. देन पार्टनर्स का बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन, उनको जो बोनस देंगे, एडिशनल वर्क का कमीशन देंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, वो लिखेंगे इधर. इफ़ इट इज़ गिवन इन द सम देन वी हैव टू राइट डाउन ओवर हियर. देन जनरल रिजर्व अकाउंट, देन जनरल रिजर्व अकाउंट, फिर ये टोटलिंग के बाद आएगा, राइट. ये जनरल रिजर्व अकाउंट मीन्स कि समटाइम सम में ऐसा बोला जाता है कि प्रॉफिट में से थोड़ा सा पोर्शन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करो तो उसकी ये इफेक्ट आएगी. वो आप सम करेंगे समझ में आ जाएगा आगे. नाउ देन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड स्टार्ट्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, तीनों का ड्राइंग लेके टोटल आउटर साइड. इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये सम में हो तो लिखेंगे. देन टोटलिंग.
If difference comes on credit side, that is called as divisible loss, and if difference comes on debit side, then it is called as divisible profit. Whatever they earn, either profit or loss, partners distribute profit or loss in between them in their P&L ratio. If P&L ratio is not given, then they distribute equally, right? So this is the specimen of profit and loss appropriation account. Now what is profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account means the account which is prepared for the partners only. Whatever partners transactions are done in the firm, that are recorded in appropriation account only, right? इसका टाइटल जाएगा P&L appropriation account for the year ending so and so of partnership firm A, B and C. A, B and C means ये partners के नेम है. अगर सब में नेम्स दिए हैं तो यहाँ पे नेम्स लिखेंगे, A, B, C नहीं लिखेंगे. So this is profit and loss appropriation account. Okay. Now when partners bring capital into the business, जब भी हमने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, राइट? तो फाइनल अकाउंट में जब भी पार्टनर कैपिटल लाते थे तो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते थे, राइट? नाउ 11th स्टैंडर्ड में तो एक ही ओनर है, इसलिए एक ही कैपिटल लगी. अभी इन द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देर आर more than 2 partners, they run the business, so they bring capital also. तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल लाए बिजनेस में, तो हमने अभी P&L में देखा कि उनको सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन वगैरह भी देंगे हम. So there are 2 methods to maintain capital account in the books of partnership firm: fluctuating capital method and fixed capital method. Now what is fluctuating capital method? Fluctuating capital method means हम कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. नाउ सी हाउ. ओपनिंग कैपिटल, additional capital introduced during the year, interest on capital, salary, bonus, commission, remuneration, interest on loan given by partners, share of partners of divisible profit are credited at the credit side of the capital account. Then drawing interest on drawing, share of partners in drawing, then share of partners in divisible loss are debited at the debit side of the capital account. So fluctuating capital method means कि capital is flexible, means उसमें change कर सकते हैं, right? For example, we have written capital, then we add interest on capital, then we add profit, then we subtract drawing, and then we deduct interest on drawing. So whatever final account comes, that is differed from this. For example, 1,50,000, from 1,50,000 we have started. ये सारा कुछ ऐड लेस करके फॉर एग्जाम्पल ये आया 1,70,000, तो ये चेंज हो गया. सो फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस टू क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इफ चेंज डिराइव्ड, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट? कि एक बार हमने कैपिटल लिखा, उसमें हम कुछ कैपिटल रिलेटेड ऐड भी कर सकते हैं, कैपिटल रिलेटेड लेस भी कर सकते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का भी डिफरेंट आएगा फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. Now see the specimen of partners capital account that is given on page number 4. Now see debit side, credit side, जितने partner हो उतने columns, date, particulars, amount, date, particulars, amount, right? Capital account is always starts by to balance brought down. डेबिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट साइड, एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो क्रेडिट साइड. मोस्टली 99.99% कैपिटल का क्रेडिट साइड ही आएगा, राइट? ओके. देन डेबिट साइड टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लॉस. देन दिस इज फॉर द टोटल क्रेडिट साइड.
कैपिटल का बैलेंस, देन बाय कैश बैंक एनी अदर एसेट, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल ये लोग लाते हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का लिखेंगे। सैलरी, राइट, उनकी फॉर एग्जांपल ए को मिलती है सैलरी तो ए के कॉलम में सैलरी लिखेंगे अमाउंट, बी के कॉलम में नहीं लिखेंगे। बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, पीएनएल, अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट, मतलब कि अप्रोप्रिएशन का डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाएगा, डिविजिबल लॉस डेबिट साइड जाएगा। देन टोटलिंग, मेथड ऑफ टोटलिंग तो हमें पता ही है कि टोटलिंग कैसे करते हैं। हायर, बोथ साइड हायर टोटल, डिफरेंस कम्स ऑन द रिवर्स साइड, राइट, कि जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हायर है तो ये टोटल दोनों साइड लिख के यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी तरह से अलग से बनाना है। 11th स्टैंडर्ड में तो हम बैलेंस शीट में ही कैपिटल लिख देते थे, ड्राइंग्स लिख देते थे, बट इन द 12th स्टैंडर्ड कैपिटल का फॉर्मेट अलग से बनाना है। So this is the fluctuating capital method. Now the second method, fixed capital method. Fixed capital method means capital become fixed. It is not flexible. We cannot make any changes in the opening capital, opening balance of capital. So that is called as fixed capital method. For example, कि ये कैपिटल का 1,50,000 बैलेंस है, तो जब भी हम ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करें तो ये 1,50,000 ही कैपिटल लिखेंगे और एडिशनल चेंज कोई नहीं करेंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बिकम्स फिक्स. We cannot make any changes in the opening balance of capital account. So that is called as fixed capital method. Now see, fixed capital method का partners capital account का format ये रहा. Format remains same as that fluctuating method. Date particulars partners column, date particulars partners amounts column, right. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो वो लिख के देन टोटलिंग, दैट्स इट, एंड डिफरेंस. सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, एडिशनल लाते हैं तो एडिशनल लिख के टोटलिंग, बस दैट्स इट, एंड डिफरेंस ऑन अदर साइड, राइट. सो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होगा कि यहाँ पे ये कैपिटल फिक्स हो जाती है तो ये सारा कहाँ लिखे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट वी रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो whenever we follow fixed capital account method, one more account we have to prepare and that is partners current account, right. इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स का कैपिटल भी बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना है. तो फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट इज, सी दिस फॉर्मेट ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट कॉलम ऑफ पार्टनर्स, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉलम ऑफ पार्टनर्स. नाउ व्हाट इज करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट मीन्स अदर देन कैपिटल पार्टनर्स ट्रांजेक्शन वी रिकॉर्ड इन वन स्पेसिमेन, दैट स्पेसिमेन इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट, राइट. ओके, नाउ करंट अकाउंट का इधर डेबिट बैलेंस होगा, इधर क्रेडिट बैलेंस होगा. ओपनिंग बैलेंस तो जिस पार्टनर्स का अलग अलग रहेगा, जिसका डेबिट हो वो डेबिट साइड, क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड. अभी क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट. डेबिट साइड करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिसका हो उसका लिखने का. देन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, पीएनएल, अप्रोप्रिएशन का लॉस, राइट.
ये सारा लिख के टोटलिंग करेंगे, हायर हो वो दोनों साइड, अदर साइड डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज टू बैलेंस कैरीड डाउन. सो पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन्स कि जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करें, इन दैट केस पार्टनर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हो तो वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करें, परमानेंट कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं करें. सो दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट. सो हियर यू हैव टू लर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, partners capital account, and profit and loss appropriation account. Now learn these three specimen properly, right, from the textbook only. थियोरी अच्छे से पढ़ना, स्पेसिमेन लर्न करना. 11th में जो हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था वही सेम है, सिर्फ ये 3 और अकाउंट ऐड हुए हैं. फिर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स जो हमने 11th में पढ़े थे, 2 इफेक्ट्स वही सेम रहेंगे. If you have 11th textbook, then revise that 2 effects of adjustment. So today's homework is write and learn specimen of partners capital account, current account, and P&L appropriation account, right? Okay.